statistics. Features and characteristics of statistics plural sense और numerical data. बच्चे फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में पहले तो देखो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. स्टैट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि वो फैक्ट्स का एग्रीगेट है, समेशन ऑफ फ्यू फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फैक्ट्स का कुछ समेशन है या एग्रीगेट है. अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ स्टैट्स. जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 50 रुपीज इन माई पॉकेट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, बट हमारी पूरी क्लास के लोगों के पर मंथ ये पर मंथ पॉकेट मनी है 100 रुपीज एवरेज. दैट इज स्टैटिस्टिक्स क्योंकि उसका एवरेज निकाला गया है. ठीक है. अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट. It is only the aggregate number of fact that is called statistics, as the same can be compared and conclusion can be drawn from them. For example, if it is stated that there are 1000 students in college, then it has no statistical significance. अगर ये बोले सिर्फ हमारे स्कूल में 4000 स्टूडेंट्स हैं, ये कोई स्टैट्स नहीं है. अगर हम ये कहें कि हमारे स्कूल में 4000 है बट एमपीएस में 3000 है, दिस इज स्टैटिस्टिक्स, वी आर कंपेयरिंग समथिंग. But if we state that there are 300 students in arts, 400 in commerce, and 300 in science in our college, it makes sense as this data conveys statistical information. Similarly, if it is stated that Nishant, I'm watching you, of India is lower, or that value of total exports from India is 1,166,439 crore, then these aggregates of fact will be termed as stats. It can therefore be concluded that all stats are expressed in numbers, but all numbers are not stats. कि stats को तो numerical number चाहिए ही चाहिए, but सारे के सारे number stats नहीं होते. Second feature of statistics is numerically expressed. अगर आप ये कहो कोई चीज rich, poor, big, small, अगर आप ये चीजें बोलोगे ना तो वो statistics नहीं होता. हम लोग करेक्टरिस्टिक्स, हम एट्रीब्यूट्स को स्टैट्स में नहीं लेते हैं. स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेसिव, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड फैक्ट. ठीक है. लिखा हुआ है स्टैट्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. Qualitative aspects like small, big, rich, poor are not called stats. For instance, to say Irfan Pathan is tall and Sachin is short and has no statistical sense. But however, if it is stated that height of Irfan Pathan is 6'2" and Sachin is 5'4", then these numerically can be called as statistics. हमने compare किया दोनों की height को. Affected by multiplicity of causes. Stats एक single factor से influence नहीं होता बच्चे. जैसे हम ये कहें कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस किस पे डिपेंडेंट है. हम ये कहते हैं ना, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, क्वालिटी ऑफ सीड पे डिपेंडेंट है, फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंट है, क्वालिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंडेंट है, कैसी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है. देयर आर मल्टीपल फैक्ट, मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अफेक्ट होता है. ऐसे ही stats are not affected by any single factor but are influenced by many factors. Had they been affected by one factor alone, then by removing that factor, there should be loss of all significance. For example, 30% rise in prices may have due to several causes like reduction in supply, increase in demand, shortage of power, rise in wages, rise in taxes, etc. तो उन्होंने बोला कि अगर किसी चीज में इंक्रीज हुआ है, सपोज 30% प्राइसेस इंक्रीज हुए सामान के, तो उसके कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होंगे. वो कह रहे हैं कि अगर एक ही फैक्टर पे डिपेंडेंट हुए, उस फैक्टर को ही रिमूव कर लिया जाए तो स्टडी की सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है. तो इन स्टैट्स वी स्टडी मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट सम डाटा. Then reasonably accurate. A reasonable degree of accuracy must be kept in view while collecting data. This accuracy depends on purpose of investigation in nature, size and available resources. Placed in relation to each other, some numerical alone will be called statistics as are mutually related and as comparable. Unless they have the quality of comparison, they cannot be called stats. हम अगर ये कहें कि इंडिया में हमारे स्कूल में 3000 बच्चे हैं, जैसे हमने भी पढ़ा था, तो वो स्टैट्स नहीं है. बट हम ये कहें कि हमारे स्कूल में 3000 एंड एमपीएस में 2000 एंड देन वी आर कंपेयरिंग समथिंग. तो जब कंपेयर किया था, किसी से रिलेशनशिप में कंपैरिजन किया जाता है, देन वी कॉल्ड इट एज स्टैट्स. ठीक है. इसके अंदर बचे distinction between qualitative and quantitative data. This is related to the distinction between quantitative and qualitative attribute.
There are quantitative variables like income, expenditure, investment, which can be expressed in numerical. Quantitative means इनको numbers में denote किया जा सके. Qualitative जिसकी quality को हम लोग numerically express नहीं कर सकते. Rich, poor, fair, dark, tall, स्मॉल शॉर्ट हेड, स्मॉल बिग, ये सब चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते. बट हमारी इनकम, हमारा एक्सपेंडिचर, आर सेविंग्स, आर इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें हम क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो डाटा स्टैट्स में जो पढ़ते हैं वो क्वांटिटेटिव डाटा पढ़ते हैं, ना कि क्वालिटेटिव. और आपको दोनों की डेफिनेशन पता हो, ठीक है. पर कैपिटा इनकम इज 4000, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इज 3000. पर कैपिटा का मीनिंग होता है बच्चे पर हेड. Net investment of year this, these are called quantitative data. On other hand, there are qualitative attributes like IQ level of different individual, beauty of individual, which cannot be expressed in numerical terms. These attributes refers to qualitative characteristics of the objects. These can be ranked or rated as good, bad, or excellent, very good. We may give them ranks 1 2 3. All such data is known as qualitative. हम ये कह सकते हैं ना कि कोई चीज क्या कहते हैं, जैसे हमने पिज्जा लिया, बर्गर लिया और एक और चीज ले ली, तीनों को टेस्ट में बताना है कि कौन सा अच्छा है, तो वी कैन रैंक देम कि फर्स्ट नंबर पे पिज्जा, देन बर्गर, देन थर्ड वन, ठीक है. बट हम ये नहीं कह सकते कि पिज्जा 100 का है, 100 नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और क्या कहते हैं बर्गर 20 का है, ठीक है. तो उनकी क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, हम उनको क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. Briefly, while quantitative data refers to quantitative variables, qualitative data refers to qualitative attributes of the different objects. यहाँ देखो दो चीजें लिखी हुई है, variables and attributes. ध्यान से सुनो, जब भी हम न्यूमेरिकल कोई चीज लेते हैं ना, तो उसके फीचर्स को हम वेरिएबल्स भी बोल लेते हैं. बट जब हम वो लेते हैं ना कोई क्वालिटी, तो उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स, जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है. जैसे कलर ऑफ माई हेयर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होगा, दिस इज एट्रीब्यूट ऑफ माई हेयर, जिसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती नंबर में. यहाँ तक सबको समझ में आया? प्रीडिटरमाइंड पर्पस. आपको पता हो स्टैट्स, जब हम स्टैट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं, सपोज हमें ये निकालना है हमारी कंट्री में या भिवाड़ी में फीमेल लिटरेसी रेट क्या है, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव. पर्पस आपको पता हो, किसी से डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना हमने किस बारे में बात करनी है. तो स्टैट्स में पहले हम ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, देन हम उसके ऊपर वर्क करते हैं. स्टैटिस्टिक्स may be collected by enumerator, sorry, statistics are collected with some predetermined objective. Any information collected without any definite purpose will only be numerically valued and not statistics. If data pertaining to farmer of village is collected, there must be some predetermined objective. Whether the stats are collected for the purpose of knowing their economic position, distribution of land among them, or their total population. For any other purpose, all these objectives must be predetermined, ह्यूमिनेटेड और एस्टिमेटेड. बेटा स्टैट्स को दो तरीके से लेते हैं, या तो हम उसको एस्टिमेशन लगाते हैं, जैसे कि कल मोदी की रैली निकली थी, इतना रश था कि इतना ज्यादा फुटफॉल था कि ये एस्टिमेटेड 1 लाख लोग आए होंगे, ठीक है. एक तो तरीका ये है. दूसरा तरीका क्या है कि जाके एक एक बंदे को काउंट करो, दैट इज ह्यूमिनेटेड, ठीक है. एस्टिमेटेड एंड ह्यूमिनेटेड. Stats may be collected by enumeration or the same may be estimated. It is field of investigation is very vast. The precision of estimation may be helpful. For example, 1 lakh people attended the rally addressed by Prime Minister in Delhi and 2 lakh in Mumbai. These are statistics based on estimation. As against it, if field of inquiry is limited, the numerator method is appropriate. For example, it can be verified by enumeration whether 20 students are present in class or 10 workers are working in the factory. आप लोगों की अटेंडेंस ली जाती है रोज, दैट इज न्यूमरेशन. और आपसे ये कहा, आपको देख के क्लास में देख के कहा जाए कि हाँ ये ऑलमोस्ट 40 बच्चे बैठे हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू, ये इसको एस्टिमेशन बोलते हैं, ठीक है. Collected in systematic manner. Statistics should be collected in a systematic manner. Before collecting, plan must be prepared. No conclusion can be drawn from statistics collected in haphazard manner. For instance, data regarding the marks secured by the student of a college without any reference to the class, subject, examination or maximum marks will lead to no conclusion.
कोई भी ऐसा डाटा होगा जिसका कोई सिस्टमैटिक रेफरेंस नहीं होगा तो वो स्टैटिस्टिक्स में कंक्लूजन नहीं निकलेगा। स्टैट्स एज अ सिंगुलर नाउन में डेफिनेशन क्या है? इन द सिंगुलर नाउन stats means science of statistics or statistics method refers to technique or method relating to collection, classification, presentation and interpretation of quantitative data। हम पहले डाटा क्या करते हैं? कलेक्शन के बाद क्या करते हैं? उसको क्लासिफाई करके ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो स्टैट्स का मेजर फोकस क्या रहता है बच्चे? कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, 5 स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर देयर। इसके बाद है बच्चे stages of collection of data, organization of data, presentation, analysis and interpretation। हमें जैसे सपोज ये देखना है कि स्कूल में किस किस सेक्शन के मैथ्स में फाइनल एग्जाम में लास्ट ईयर सबसे अच्छे मार्क्स आए थे। ठीक है, सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, सब बच्चों के मैथ्स के मार्क्स पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग क्लासेस के बच्चे, 7th ए, 7th बी, 7th सी के क्लासेस के बच्चों को अलग करेंगे। देन उसको प्रेजेंट करेंगे टेबल्स की फॉर्म में या लिस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। 7th ए की लिस्ट ये, 7th बी की लिस्ट ये, 7th ए सी की लिस्ट ये। फिर उसको एनालाइज करेंगे कि किसके कितने कितने स्टूडेंट्स हैं जो 85% अबव है। ठीक है, फिर जब रिजल्ट्स निकाले, एनालिसिस करके देखेंगे एवरेज कौन सी सेक्शन के बच्चे मैथ्स में सबसे अच्छा स्कोर कर रहे हैं। फिर उसका हम एनालाइज करेंगे, एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद लास्ट करेंगे हम इंटरप्रेट की जी 9th ए एंड 10th सी दोनों के नंबर सारी क्लासेस से सबसे ज्यादा है। तो 5 स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर देयर: कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, presentation of data, analysis of data and interpretation of data. Obviously, at the first stage, we collect statistics data. Second, we organize in some systematic order. Third, we present the data in the form of graphs, diagrams, or tables. Fourth, we analyze the data in terms of averages or percentage. Fifth and finally, we interpret the data to find out the correct conclusion. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल टूल्स। अब टूल्स कौन से हैं, कैसे हम कलेक्ट करते हैं, कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, दीज आर स्टैटिस्टिकल टूल्स। Each stage of statistical study involves each stage of statistical study involves the use of certain standard of technique or method. These technique or methods are called as statistical tool. Underline the definition. जैसे हम कैसे कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी है, खुद जाके कलेक्ट करें, किसी के थ्रू करवा रहे हैं, these are statistical tools. Thus, there are statistical tools used for the collection of data, like sample and census method, array of data or telebars to present the data or organize the data, tables, graph, bar graphs, etc. for presentation of data, averages, mean, median, mode, percentage to analyze the data, and then finally interpret the data. Average, percentage, and commonly used technique for analysis of data. Interpretation of data is often done in terms of magnitude of average, percentage, or coefficient of correlation, regression, etc. The following table gives an overall view of the various stages of statistical study with their statistical tool: collection of data, organization of data, presentation, analysis and distribution or interpretation of data. कलेक्शन ऑफ डाटा में हम देखेंगे कौन सा मेथड लिया है, सेंसस मेथड लिया है या सैंपल। ऑर्गेनाइजेशन में हम टेली बार लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। परसेंटेज में हम देखेंगे, प्रेजेंटेशन में देखेंगे टेबल्स, ग्राफ्स, डायग्राम, सब में कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं। एनालिसिस में देखेंगे मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, ये सब। और लास्ट है इंटरप्रिटेशन, उसमें हम देखेंगे कैसे हम लोगों ने उसका मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स एक्सेट्रा। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो बच्चे।